This is JVN Dr. Brajraj Singh Chauhan, Associate Professor, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Program name Bachelor of Pharmacy, first semester. Course name Remedial Math, and session of today is partial fraction. So, learner, we are knowing well in algebra, we are familiar with operations, addition, subtraction of two or more algebraic function. To change these into a simple algebraic fraction, we take the LCM of the denominator of these fractions. After simplifying these, we obtain single fraction. For example, 2 upon x minus 1 plus 3 upon x plus 2. Taking LCM, and after getting add, we take 2x plus 2 plus 3x minus 1 upon x minus 1 upon into x plus 2 is equal to 5x plus 1 upon x square plus x minus 2. But sometime we require a process converse of above process. For instance, if we have the addition of two or more function, then how it is separate? So in order to separating, we have a function given here 2x, rational expression 2x upon x square minus 1 is equal to 1 upon x minus 1 plus 1 upon x plus 1. And on same way, another example is 5x minus 11 upon 2x square plus x minus 6 is equal to 3 upon x plus 2 minus 1 upon 2x minus 3 etc. So बच्चों, हम जानते हैं कि एलजेब्रा में हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बहुत सारी ऑपरेशंस करनी पड़ती हैं. तो जब हम उनका एडिशन करते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं. एलसीएम लेने के बाद फिर हम उसको ऐड करेंगे और आफ्टर एडिशन हमको एक फंक्शन प्राप्त होता है रेशनल एक्सप्रेशन के फॉर्म में. सपोज कीजिए अगर हमको राइट हैंड साइड गिवन हो और उसका लेफ्ट हैंड साइड हमको फाइंड आउट करना हो, तो ये प्रोसेस एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जस्ट वाइस वर्सा प्रोसेस है और इसी प्रोसेस को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं. अगर सपोज कीजिए हमारे कोई से भी दो या दो से अधिक रेशनल फ्रैक्शन है और उनका हमने एडिशन कर दिया है एलसीएम लेने के बाद, और आफ्टर एडिशन हमें जो एक्सप्रेशन, जो व्यंजक रेशनल एक्सप्रेशन के फॉर्म में प्राप्त हुआ है और उससे हम वापस जिनको ऐड किया था उन्हीं को प्राप्त करना चाहें, तो हम जिस प्रक्रिया से गुजरते हैं, जो प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं, उनको अलग अलग करने के लिए उस विधि को, उस एल्गोरिथम को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन. एक प्रोसेस हो गई, हमने दो अलग अलग रेशनल एक्सप्रेशन को ऐड किया. आफ्टर एडिशन हमको एक रेशनल एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ. अब हमको जो रेशनल एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ उससे जिनको हमने ऐड किया उन्हीं पे वापस आना हो, तो उस प्रोसेस को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं. डेफिनेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज गिवन हियर. द प्रोसेस बाय विच द partial fraction of a rational algebraic fraction are obtained. This method is called, or method of separating this in the partial fraction or reduction in the partial fraction is called the partial fraction. Rational algebraic fraction, if fx and gx are two different polynomials, then the expression px upon qx or fx upon gx is called a rational expression. For instance, 2 minus 3x upon 3x square minus 4x plus 1. Another example is 2x square minus 3x plus 1 upon x cube minus 2x square minus 3x plus 4. Another example is x cube minus 2x square plus 1
upon x square plus 2x plus 3 etc. These are the example of the rational algebraic fraction. Just similar rational number. If any number is written in the form of p upon q, then this number is called as rational number. Similarly, rational fraction, if we have two polynomial fx and gx, if it is written in the form of fx upon gx, then this is called the rational fraction. So there is two type of fraction. First is proper fraction, proper rational fraction. Another is improper rational fraction. Proper rational fraction. In proper rational fraction, we have two polynomial, one in numerator, another in denominator. If degree of numerator, that is fx, is less than degree of gx, then it is called the proper fraction. कहने का आशय ये है कि न्यूमेरेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री अगर डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से कम है तो हम कहेंगे कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है. जस्ट वाइस वर्सा, इसके उलट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमेरेटर की डिग्री से अधिक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो fx है, जो न्यूमेरेटर है, उसकी डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. तो जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे तो हमारा पहला स्टेप ये रहेगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें. इसका आशय ये है कि अगर न्यूमेरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी या बराबर है तो हम तब तक पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस ना हो. तो हम इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो न्यूमेरेटर है उसमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और डिवीजन तब तक करते रहेंगे जब तक कि जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम ना हो जाए. और जब डिग्री कम हो जाएगी तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा. जब प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा फिर वो रेशनल एक्सप्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन करने के योग्य हो जाएगा. फिर हम कह सकते हैं कि उसका पार्शियल फ्रैक्शन किया जा सकता है. हियर इम्पोर्टेंट नोट इज an algebraic fraction can be reduced into the partial fraction only when it is proper fraction, that is the degree of numerator is less than the degree of denominator. कहने का आशय यही है कि पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए ये प्रीरेक्विजिट है, ये आवश्यक है, ये अनिवार्य है कि हम सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस करें. और रिड्यूस करने के लिए हम डिवीज़न करते हैं. डिवीज़न तब तक किया जाता है जब तक कि न्यूमेरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस ना हो जाए. जब वो लेस हो जाएगी तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस हो जाएगा. उसके बाद हम उसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं. I hope you are satisfied with this session. If you have any query, please mention in comment box. Thank you very much. जेवीएन डॉक्टर ब्रजराज सिंह चौहान